السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس کے ہم پر آپ پر بے شمار احسانات ہیں، جس ذات نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، قرآن جیسی عظیم کتاب دی، اور اسلام جیسا محترم، مکرم، مقبول دین عطا فرمایا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور سب مل کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک علیہ، آمین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اور ہمارے اور آپ کے چلنے پھرنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے زمین بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، آسمان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو زمین پر آباد کیا، اور ہماری رہبری رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا۔ ہم اور آپ کچھ نہیں تھے، ہماری آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جس وقت ہم اور آپ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے تھے، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ بولنے کی طاقت دیتا ہے، پیروں میں چلنے کی شکتی عطا فرماتا ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دیتا ہے، دماغ میں سمجھنے اور بوجھنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ قرآن نے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا
وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا ہے، جس وقت تم ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ تھا، پیر تھے چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ تھے پکڑنے کی شکتی نہیں تھی، دماغ تھا لیکن غلط اور صحیح کی پہچان کرنے کا ہنر تیرے پاس نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کانوں میں سننے کی طاقت دی، تمہاری نظروں میں اللہ نے بینائی رکھی، تمہارے سینے میں اللہ نے دل کو دھڑکایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سب مل کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اتنی بڑی زمین بچھائی ہے، اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آباد کیا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بیکار دے رکھی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ چلیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دی۔ موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ لے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا نکلتا ہے، کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، کون کتنی بار اللہ کا نام لیتا ہے، کون کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی رٹ لگاتا ہے، کون اللہ کے گھر میں آتا ہے، کون اللہ کے گھر میں آ کر اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی رٹ لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، موت دی، صرف اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں جانچے کہ تم میں عمل کی اعتبار سے کون اچھا نکلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی بیکار نہیں دی ہے، بلکہ زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے پیچھے کی راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جانچنا چاہتا ہے، ہمارے آپ کی پریکشا لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھے گا، نوجوانوں تم سے بھی پوچھے گا، عمر دراز لوگوں تم سے بھی پوچھے گا، مستقل سوال ہوگا کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اگر نہیں سنا تو آج سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت و جہنم کا بٹوارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے، ہر بنی آدم سے، ہر آدم کی اولاد سے، یعنی کہ ہر شخص سے 5 سوالات کرے گا، 5 سوالات۔ جب تک 5 سوال اللہ نہ کر لے، جب تک اللہ کے بندے 5 سوال کا جواب نہ دے دے، تب تک اس کی طاقت نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹے، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال ہوگا ان 5 سوالوں میں ان عمرہ فیما فنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوچھے گا، اللہ بندے سے پوچھے گا میرا بندہ ذرا بتا کہ تو نے پوری عمر کہاں کٹائی؟ پوری زندگی کا سوال ہوگا، پوری زندگی کا سوال ہوگا، پوری عمر کا سوال ہوگا۔ اگر آپ نے 60 سالہ زندگی کٹائی ہے، اگر آپ نے 80 سالہ زندگی کٹائی ہے، اگر آپ نے 90 سالہ زندگی کٹائی ہے، اگر آپ نے 100 سالہ زندگی کٹائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل سوال پوچھے گا۔ سب سے پہلا جو سوال اللہ پوچھے گا میرا بندہ ذرا بتا کہ تو نے اپنی عمر کہاں کٹائی؟ پوری زندگی کا سوال ہوگا تو نے 100 سالہ 70 سالہ زندگی تو نے کہاں کٹائی؟
नौजवानों, तुम भी कान के पर्दे खोलो, दिमाग को हाजिर नाजिर रखो और एकसोई के साथ, पूरी दिलजमी के साथ बातों को सुनने की कोशिश करो। नौजवानों, जवानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वन शबाबिही फीमा बुला, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, मेरा बंदा जरा बता कि तूने अपनी जवानी कहां कटाई। मुस्तकिल जवानी का सवाल होगा। नौजवानों, कान के पर्दे खोलो, नौजवानों कान के पर्दे खोलो। ये बड़ा आसान मामला है। रात रात भर मोबाइल में व्यस्त रहना, मोबाइल में बिजी रहना, पूरी पूरी रात तुम गप्पेबाजी में अपना टाइम पास करते हो, पूरी पूरी रात मोबाइल में खत्म कर देते हो। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको समझाने के लिए काफी नहीं है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो आपके सामने रखा गया, अन शबाबिही फीमा बुला, हर नौजवान से पूछा जाएगा, हर आदमी से पूछा जाएगा, हर इंसान से पूछा जाएगा, जरा बता कि तूने अपनी जवानी कहां कटाई। इसलिए तो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है ताकि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले, हमें पूछे, हमारी परीक्षा ले। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर रखकर अपने दिल के ऊपर हाथ रखो, जरा सोचो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारी जिंदगी कहां तक जाके टिकती है। हमने अपनी जिंदगी के अय्याम कहां गुजारने की कोशिश की है, हमने अपनी जिंदगी का पल पल कहां कटाया है। लोगों, अपने अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और जरा सोचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, सारे लोग परेशान होंगे, हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। ना कोई, ना उस दिन बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का ना होगा, बीवी शोहर का ना होगी, ना शोहर बीवी का होगा, ना भतीजा चचा का काम आएगा, ना चचा भतीजे का काम आएगा। कोई किसी का काम नहीं आ सकता है और सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। सूरज जमीन से तकरीबन 9,33,00,000 मील की बुलंदी पर सूरज है और उसकी रोशनी जमीन पर आ रही है। मई और जून की तपती धूप में हमारा कितने परेशान होते हैं। कहीं जगह मिल जाए, कहीं थोड़ी छांव मिल जाए, कहीं थोड़ा दरख्त मिल जाए, दरख्त का साया मिल जाए कि थोड़ी राहत की सांस लें। अब जरा बताएं, उस दिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब सूरज बिल्कुल सर से करीब आ जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी खतरनाक घड़ी में, ऐसी खतरनाक घड़ी में, ऐसे खतरनाक आलम में अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे 7 तरह के लोग साया पाएंगे। कितने तरह के लोग? 7 तरह के लोग। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 तरह के लोग कल अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के अलावा जब किसी चीज का साया ना होगा, किसी तरह का साया ना होगा, तब ऐसे वक्त पे 7 तरह के लोग अल्लाह के अर्श के नीचे साए में होंगे। एक ऐसा नौजवान जिसकी जवानी परवान चढ़ी है, जिसकी परवरिश हुई है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में। जी, और हाँ, दूसरा शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा शख्स के जिस शख्स का दिल लटका हुआ रहता है मस्जिद में, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में जिसका दिल लटका हुआ रहता है वही अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जगह पाएगा। अब जरा बताएं, हमारी हालत तो यह है कि अजान कानून से टकरा रही होती है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, जमात खड़ी हो गई, जमात खत्म हो गई, कोई परवाह नहीं, हम देख के निकल जाते हैं। हमारी पोजीशन ये है, हमारी हालत यह बन गई है कि अजान कानून से टकराती है, कोई परवाह नहीं। अफसोस का मकाम है। नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ रुख करो। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, तुम अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह के घर की तरफ आओ, अल्लाह की मस्जिद की तरफ आओ, जिस मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर, उसकी परस्तिश की खातिर, उसकी बंदगी की खातिर एक आदमी अपनी पेशानी रखता है। मस्जिद अल्लाह का घर है। और मुझे जिस तरीके से पता लगा कि आज का जो पंडाल सजाया है, आज की जो महफिल लगी है, पंडाल लगा है, ये जलसा सजाया गया है मस्जिद के नाम पर। मस्जिद अल्लाह का घर है।
اور उस अल्लाह के घर को अगर मोहब्बत की नजर से देखेंगे, मस्जिद के अंदर जाएंगे और अपनी पेशानी को मस्जिद के अंदर रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, दिन रात में 17 रकातें नमाज पढ़ी जाती है, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हमसे आपसे खुश होगा। और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, सबसे बड़ी इबादत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए उसकी रजा के खातिर सजदे किए जाए, नमाज पढ़ी जाए। हम सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज नहीं तो कुछ नहीं। आप यकीन करें, सबसे पहली जब पूछ होगी अल्लाह के दरबार में, सबसे पहला सवाल होगा नमाज से मुताल्लिक होगा। अगर आपके पास नमाज नहीं, नमाज जैसी इबादत अगर आपके अंदर नहीं है, आप किसी गिनती के नहीं है। आपको दुनिया वाले चौधरी कह सकते हैं, दुनिया वाले मालदार कह सकते हैं, आपकी इज्जत दुनिया में हो सकती है, आप जायदाद संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक आप हो सकते हैं, जमीनें आपके पास हो सकती है, कारखाने आपके पास हो सकते हैं, फैक्ट्रियां आपके पास हो सकती है, दुकानें आपके पास हो सकती है, दुनिया वाले आपको चौधरी कह सकते हैं, दुनिया की नजर में आप गुरु हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजर में आप उस वक्त मालदार बनेंगे जब आप नमाजों की पाबंदी करेंगे। अगर आपके पास नमाज नहीं, आपके पास इबादत नहीं अल्लाह तबारक व तआला की, आपके पास ईमान जैसी दौलत नहीं है, तो आप अल्लाह की नजर में फकीरों का फकीर है, आपकी कोई इज्जत वकार नहीं है। सुन ले, आप नमाजों की पाबंदी जरूरी है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मस्जिद की तरफ आए, मस्जिद आने का आदी बन जाए, तो मस्जिद आता देखकर आप गवाही दे दीजिए कि आदमी ईमानदार। बात समझ में आ गई? नुक्ते की बात है। मस्जिद यानी कि मस्जिद में वही शख्स आएगा जो ईमानदार होगा। मस्जिद में कौन आता है भाई? ईमानदार ना। कहते हैं कि जो मस्जिद के अंदर आ रहा है, आप गवाही दे दीजिए कि आदमी ईमानदार है। अल्लाह समद। और आप एक बात सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज, आप अगर जितनी बातें आज कही जा रही हैं, अगर इन बातों पर अगर आपका अमल हो गया, इंशाअल्लाह नमाजें हमसे नहीं छूटेंगी। कहिए इंशाअल्लाह। यकीन करेंगे? सुनिए, आप रमजान का महीना आता है, आपने रमजान के रोजे रखे हैं ना? रखे हैं ना? तो रमजान के महीने में आपने बार बार तकरीर सुनी होगी, उलमा ये समझाते हैं कि लोगों, जन्नत के अंदर 8 दरवाजे कितने कितने? हाँ, आप थोड़ा जवाब देंगे तो सीखने का मौका बेहतरीन है, सीख सकते हैं आप ना। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के कितने? जहन्नम के नहीं पता। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। और 8 दरवाजों में एक दरवाजे का नाम होगा अर्रैयान। क्या नाम है? अर्रैयान। और रोजेदार हजरात के लिए यह स्पेशल दरवाजा होगा। स्पेशल दरवाजा कौन सा? अर्रैयान। दरवाजा वो अर्रैयान नाम का होगा और उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार ही दाखिल हो सकते हैं, उसके अलावा किसी की एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह समद। किसके लिए? सिर्फ रोजेदार के लिए। अब मजे की बात आपके सामने आ रही है, अभी तक मैंने बात नहीं कही है। रोजेदार के लिए खास दरवाजा, उस दरवाजे का नाम क्या बताया मैंने अभी? अर्रैयान। अब सुने खुशखबरी, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो भी सुने, और जो लोग नमाजों की पाबंदी करें वो भी सुने, और जो लोग नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं वो तो खास तौर पे सुने कि आपके लिए कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स वजू बनाता है, और जाहिर सी बात है कि जो नमाज पढ़ेगा उसको वजू बनाना पड़ेगा कि नहीं? वजू बनाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ जिसने पढ़ ली वजू के इख्तिताम में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी बात है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन 8 दरवाजों में जिस दरवाजे से चाहे वो आदमी दाखिल हो सकता है। अल्लाह समझ, कितना बड़ा इनाम है सिर्फ वजू बनाने। और वजू बनाने के बाद लास्ट में अगर दुआ पढ़ ली आपने तो यह फजीलत। अब नमाजों की फजीलत कितनी हो सकती है, फैसला कर सकते हैं आप। तसव्वुर कीजिए, जब एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है, भाई हम आप मुसलमान है ना, एक आदमी जब मुसलमान बनता है तो मुसलमान बनने के लिए शर्त यह है कि वह आदमी अपनी जबान से कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो है। अल्लाह के रसूल का फरमान है
बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। कितनी चीजों पर कायम है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उन 5 चीजों में सबसे पहली चीज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आप इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहली चीज, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। पहली चीज हो गई। जब आपने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं है, गोया एक आदमी जब इस्लाम के दायरे में कदम रखता है और इस कलमे का इकरार करता है, गोया ये अल्लाह तबारक व तआला से वादा करता है। क्या चीज का वादा करता है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कह दो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हमने और आपने इकरार किया, सिर्फ जबान से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान बन गए? नहीं तो 3 काम। सबसे पहला काम, आप इस कलमे की गवाही दें, आप इस कलमे का इकरार करें। इकरार बिल लिसान, जबान से इसका इकरार करें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपको दिल से इस बात की तस्दीक भी करनी है, दिल से इस बात की तस्दीक करनी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अमल करके भी बताना है कि हम मुसलमान। अजान हो गई, अजान कानून से टकरा गई, आप मस्जिद का रुख करें। आपने वजू बनाया, वजू बनाने के लिए आपने पानी मंगवाया, बिस्मिल्लाह आपने कहा, वजू बनाना शुरू किया, सुन्नत के मुताबिक आप वजू बना रहे हैं, हाथ पैर धुल रहे हैं, सर पे मसा भी कर रहे हैं। आपने जब वजू खत्म किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लिया, दुआ पढ़ ली, पढ़ा कि नहीं? आपने वजू मुकम्मल किया, आप मस्जिद का रुख करेंगे, भाई चल रहे हैं, हाथ पांव के जरिए से अमल कर भी रहे हैं। जब आप मस्जिद का रुख करेंगे, मस्जिद में आपकी एंट्री होगी, आप पहले दायां पैर अंदर करें, दायां पैर अंदर डालें मस्जिद के अंदर और आप कहें अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तू मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे, तू अपनी रहमत का दरवाजा मेरे लिए खोल दे। जबान से कह रहे हैं और आप मस्जिद के अंदर भी जा रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। जब आप मस्जिद के अंदर चले गए, अब नमाज पढ़ने की बारी आएगी। अब फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो इकामत कहना होगी कि नहीं? इकामत पढ़ेंगे और आप यूं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह अकबर करके नियत बांधी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअता बैनल मशरिक वल मगरिब। आप पूरी दुआ पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, आपने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, गौर से सुनिएगा कितना बड़ा इनाम है। मस्जिद तो बना रहे हैं भाई, मस्जिदें तो बनती जा रही हैं, नई नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं, लेकिन नमाजी कहाँ है? पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। भाई मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदें बन रही हैं, लेकिन नमाजियों में कमी होती जा रही है। नमाजी कितने रह गए? अभी से कुदसी है, डायरेक्ट अल्लाह का हवाला दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए आता है और नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करता है, इदा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। अल्लाहु समद। जब अल्लाह का बंदा, जब हम और आप मस्जिद के अंदर जाए और आप और हम नियत बांधे और जब हम और आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، میرے بندے نے پھر میری تعریف بیان کی۔ اللہ الصمد، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری شان بیان کی، اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی والعبد ما سأل، یہ نماز کی فضیلت اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ہم اور آپ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور دن رات میں 5 وقت کی نماز میں 17 رکعتیں نماز فرض ہیں، 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب ذرا بتائیں کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ذرا بتائیں کہ انعام کس کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، اسی کے لیے نا۔ جو لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں انہیں کے لیے نا۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کے گھر کی طرف کا رخ کریں، سب کہیں انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز نہیں تو کچھ نہیں، نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ لوگوں نماز پڑھیں، جب اذان کانوں سے ٹکرائے سارا کام کاج چھوڑیں اور مسجد کا رخ کریں۔ نماز سے یوں نہ کہو کہ ہمیں کام کرنا ہے، کام سے یوں کہو کہ نماز پڑھنی ہے۔ کام کاج میں مست و مگن ہے آپ، اذان کانوں سے ٹکرا گئی، آپ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا، اب ہمیں سارا کام کاج چھوڑنا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہے۔ اس پروردگار کی طرف سے اعلان ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جس پروردگار کی طرف سے بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔